Right. So, Bismillah ar-Rahman rahim. Right, guys. Assalamu alaikum. The last week we have discussed about the buffers and interrupts, and today we'll discuss about the operating system. We have discussed about how the operating system works and basically how buffer interrupts are used. I have given you and explained you through and one example. And today we'll do the activity 4.2, 4.3, and 4.4. This is your and class activity. This is not a class activity actually. This will be your home activity that you have to do in your copies. Now, as you can say that activity 4.2 states, find out how buffer and interrupts are used when sending data to memories such as DVDs and solid states or pen drive, right? So similarly, you have to find out the answers, how interrupts are used, how buffer memory is used, and you can Google it on and you can find, you have, it's your home assignment. Now, activity 4.3 says, find out how buffers are used when streaming a video or music from internet to your computer. Now, it is basically related to the memory which is inside the your virtual memory. So the all the data that is being extracted and streamed from the internet, they are temporarily saved on your virtual memory, and later on you can use it. So this is where the streaming videos and the music from the internet goes. And so you can make an answer of it, and you can write the details which I have already explained to you. Activity 4.4, it says, investigate the many ways that hardware and software can cause an interrupt to occur. Are all the interrupts treated equally, or do some have priority over them or others? Now, as I have already told you that in the last class, there are certain jobs which have a priority on some certain task. For example, if CPU has to do and has to schedule some tasks, so the CPU will schedule their jobs or tasks according to the priority basis. Now, the priority can be occur on different criterias. It can be occur on first come first serve basis. It can also occur on least job first, shortest job first. Okay, so it is just like that. So hardware and software can guess it investigates how many ways. Okay, so you have to investigate the many ways. So how hardware and software can cause the interrupt. So this is, you have to basically does some have the priority? Yes, it's have priority, because every hardware basically requires the attention from the CPU, because CPU is the main source of resources. So all the resources has to be allocated to the from the CPU to all the devices. So the every device has a priority. Let's suppose a keyboard and the mouse has a, and monitor has more higher priority than the speakers and scanners or printers, because they are the only devices, main devices, to display the data and to enter the data. So similarly, inside the CPU, there are certain devices. For example, RAM is higher priority, has a higher priority instead of hard drive. Cache is more higher priority than RAM. So basically, every hardware device has a more higher priority. So that's how it's basically resolve all the tasks. And I hope that this might clear all the three activities to you, and you have to do it in your copies. Now, coming back onto today's topic, it says, if you have any questions, you can ask me.
Any questions, please? You can raise your hand. You can raise your hand if you have questions. I will ask you to unmute, so then you can unmute yourself. Okay, is it clear? I hope so. Right. Right, class. So coming back onto the topic, today's topic, that is computer architecture, and this basically is the most important topic of this chapter. Yes, they are certainly more other topics are there, but if you understand this topic very clearly, so then you can understand the major subtopics that is covered in in this chapter. Okay, so this is basically also covered in your पेपर वन एज वेल. मेनली ये जो है, ये जो टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, वो कवर्ड होता है. नाउ मैं थोड़ा सा इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं. बैकग्राउंड ये है कि शुरू में जब कंप्यूटर्स बने थे 1945 से पहले, जितने भी कंप्यूटर्स बनते थे, मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर और सम द एशियंट कंप्यूटर्स. नाउ वी आई एम टॉकिंग अबाउट the computers in 19th centuries and 18th centuries. Okay, early 19th centuries, around 1910 to 1940 around. So the computers that were used at that time basically does not have an idea to hold the programs in the memory. मतलब ये कि आप आज जो अपना डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फाइल सेव कर दी, कोई डेटा सेव कर दिया, इससे पहले 1945 से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था. ना तो फिर कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि इट वाज अ रियल टाइम प्रोसेसिंग. रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या? आपने डेटा इनपुट किया, सीपीयू में गया, उसको प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आ गया. नाउ दैट्स बेसिकली द फाइनल थिंग. यू कैन नॉट स्टोर द एक्चुअल डेटा विच इज बीन प्रोसेस्ड. Now, if you want to process that data again, so you have to input that data again, and you will get the output again. This is how the computer works before 1945. But what happened at about 1945 around? John von Neumann basically gave an idea of a stored program of computer. For example, idea क्या था कि the program which you entered into the computer system or computer to process it, you can actually give and you can actually save that data into the memory. Before that, there was no concept of memory unit of there in the computer. इट वॉज प्रोसेसिंग, यानी कि जो प्रोसेसिंग का एक कॉन्सेप्ट था, आपने डेटा इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, दैट्स इट. ठीक है. मगर अब जैसे अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं, अभी मोबाइल की अगर आप लोग बात करते हैं, तो अगर आप किसी चीज को टच करते हैं, कोई एप्लीकेशन टच करी, उसको ओपन किया, फिर उसको क्लोज कर दिया ना, ये सारे एक्ट्स जो हैं आप इनपुट्स कर रहे हैं, ये सारे एक्ट्स बेसिकली दे आर नॉट स्टोरिंग इनटू द मेमोरी. ठीक है. अगर ये सारी चीजें स्टोर होना शुरू हो जाए, सो आप कहेंगे दैट्स गुड, क्योंकि आपको बार बार ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी. तो द आइडिया वाज दैट कि इट कैन होल्ड द प्रोग्राम. फिर इन्होंने क्या किया, जॉन वॉन न्यूमैन हैज डेवलप्ड एन आइडिया कि देयर शुड बी अ स्पेस इनटू द कंप्यूटर एंड व्हिच शुड बी कनेक्टेड टू द प्रोसेसर एज वेल. And in that space the user can store that data. Okay. And his idea was to hold the program and data into the memory.
ओके ना, अब वो फिर मूव कर सकता है बिटवीन मेमोरी टू प्रोसेसर. दिस वाज एन आइडिया. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया in in a layman terms, so that you can easily elaborate it into your own words. ठीक है, आप इसको इस आइडिया को अगर समझ गए कि 1945 से पहले मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, 1945 के बाद जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने में क्या चीज आई नई कि इन्होंने एक नया आइडिया पेश किया. क्या आइडिया था? वो आइडिया ये था टू स्टोर द मेमोरी, टू स्टोर द डेटा इनटू द मेमोरी. एक मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर कर. उससे पहले ये था कि प्रोसेस करो और आउटपुट ले लो. ओके नाउ अब एक्चुअली इसको कैसे उन्होंने सेव कर, अब जाहिर सी बात है ऑब्वियसली मेमोरी को प्रोसेसर से कैसे कनेक्ट करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल. तो मेमोरी को इस प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए they have used the concept of buses. Now linked together by connection of buses. अब buses जो है is a representation of, this is basically the representation. अब ये सब आपको purple, green and the peach color की जो आपको arrows नजर आ रहे हैं and the directions on which they are going, so actually they are the buses. And that's how the actually every component, for example the processor, the memory unit, the input output unit basically works together and they are connected to buses. ये सारी चीजें. Now processor से क्या है basically, this purple basically is called an address bus. I will explain you what is basically address and what are the buses and what are the types of buses. But actually first of all we have to listen and understand that कि ये buses का concept कैसे आया. बसेस का कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि पहले आई मेमोरी यूनिट, दैट्स मेमोरी यूनिट आया और मेमोरी यूनिट को कनेक्ट करने के लिए प्रोसेसर के साथ बसेस का कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, अब बसेस के अंदर भी जाहिर सी बात है जब स्टोरेज आई तो जाहिर सी बात है तीन अब बसेस आएंगी. अब बसेस को उन्होंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया. वन बस इज कॉल्ड एड्रेस बस, द अदर वन इज कॉल्ड द डेटा बस एंड द पीच वन इज कॉल्ड द कंट्रोल बस. ना अब जो पर्पल बस है, जो एड्रेस बस कैसे है सर, एड्रेस बस बेसिकली इट्स ए यूनिडायरेक्शनल. ओके, अब प्रोसेसर दैट इंक्लूड्स अ कंट्रोल यूनिट. प्रोसेसर में एड्रेसेस जाएंगे, एड्रेसेस कहां से जाएंगे, मेमोरी यूनिट में, और वही एड्रेसेस कहां से जाएंगे, कहां तक, प्रोसेसर से जाएंगे, प्रोसेस होकर इनपुट और आउटपुट यूनिट के अंदर. ये कहलाते, दिस इज कॉल्ड अ यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस. एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है एंड इट बेसिकली गोज फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी यूनिट एंड द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट. दैट्स इट. Similarly, the data bus is a unidirectional. It's not a unidirectional. It's a bidirectional because memory unit से data processor की तरफ आ भी सकता है और प्रोसेसर से डेटा प्रोसेस होकर सेव करने के लिए मेमोरी में वापस जा भी सकता है. सिमिलरली जो डेटा है वो इनपुट एंड आउटपुट की तरफ भी ट्रेवल कर सकता है. सो इट्स बाई डायरेक्शनल मेमोरी, क्या कहते हैं, डेटा बस. सो मेमोरी यूनिट से वो डायरेक्टली इनपुट और आउटपुट की तरफ भी जा सकता है. अगर वो डेटा पहले से प्रोसेस हुआ है तो वो प्रोसेसर के पास नहीं जाएगा, इनपुट मेमोरी यूनिट से डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, इनपुट एंड आउटपुट की तरफ उस मॉड्यूल पे. अगर लेट्स सपोज वो प्रोसेस नहीं हुआ हुआ तो वो जो है पहले प्रोसेस के पास जाएगा इनपुट एंड आउटपुट से और फिर वहां से मेमोरी की तरफ चला जाएगा. The third one is called the control bus. The control bus basically is also a unidirectional from processor to memory unit and input and output unit. Why is it so? Because the data which is being saved और ये जो control signal, controlling की जो powers हैं, the processor basically just like a कंट्रोल यूनिट जब इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो कंट्रोलिंग की जो सारे सिग्नल्स हैं, इंटरप्ट्स हैं, वो सारे सिग्नल्स जो है वो यहाँ से जनरेट होंगे. तो वो जो भी कंट्रोलिंग होगी वो यहाँ से ट्रेवल करेगी और इट्स वो वापस कहीं पर नहीं आती, वो यहाँ से जनरेट होगी. इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैफिक कॉप. भाई आपने करेक्ट लोकेशन से करेक्ट डेटा उठाया इस चीज और वो करेक्ट
कंपोनेंट की तरफ जा रहा है, वो ये कौन इंश्योर करेगा? ठीक है, वो कंट्रोल बस इंश्योर करेगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चंस? Yes, I am unmuting to all of you. Yes, Anas Sayed, Haider Fareed, Hamza Imran Mohib. Any questions? No, sir. Nihal Fatma, Shayan Irfan. Yes, any question? Yes, students, any question till here? Okay, let's proceed. Now, what is an address bus? Now, address bus, it says it carries a signal relating to the addresses. एड्रेस बस का नाम सुनते ही हमारे ध्यान में क्या आएगा? एड्रेस बस में एड्रेस जाएगा, ठीक है, और डेटा बस में डेटा जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल बस में क्या जाएगा? वो सिग्नल दैट इज रिलेट टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विद द कंप्यूटर। यानी कि ये दोनों बसेस, एड्रेस बस और डेटा बस, अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है, इनकी कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है या कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स एड्रेस है, ये आराम से उस तक पहुंच रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल बस, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। नाउ address bus is a unidirectional, as I have already explained you why it is so. Database is also bidirectional, data can travel in both direction, ठीक है, डेटा जो है वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। यूनिडायरेक्शनल, अच्छा, यूनि का मतलब होता है वन, यूनिडायरेक्शनल मींस वन वे। नाउ इन दैट प्रोसेसर, ना ये एक हमने प्रोसेसर पढ़ा है अभी तक, हम वी आर नॉट टेकिंग दिस मेमोरी यूनिट एंड राइट नाउ। अब हम प्रोसेसर के अंदर फिगर 4.4, दिस इज द फिगर 4.4 shows a slightly more detailed diagram of a वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब ये वॉन न्यूमन का एक आर्किटेक्चर उन्होंने दे दिया, ठीक है, इसके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। अब उन कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। व्हाट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट? इन्होंने कहा एड्रेसेस एंड रजिस्टर्स का। एड्रेसेस क्या होते हैं? एड्रेसेस इंडिकेट्स वेयर द डेटा इज स्टोर्ड एंड रजिस्टर्स आर नीडेड सो दैट डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड विद इन द कंप्यूटर्स। नाउ अब बेसिकली एन एड्रेस इज अ लोकेशन ऑफ वेयर डेटा कैन बी फाउंड। अब डेटा जहां पर सेफ है, फर्ज करें आप एक स्टूडेंट है, स्कूल के अंदर आपकी कोई चेयर होगी, ठीक है, वो चेयर आपकी लोकेशन है, उस लोकेशन पे कोई ना कोई एक रोल नंबर होगा या कोई ना कोई उसका एड्रेस होगा। तो इसी तरह से कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर जब सेव होता है तो किसी खास लोकेशन के ऊपर सेव होता है, उस लोकेशन का एक एड्रेस होता है। यही वॉन न्यूमैन ने एक प्रपोज किया था, क्योंकि मेमोरी का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। उस कॉन्सेप्ट को जब दिया तो उन्होंने जब लोकेशन का दिया तो उस लोकेशन के अंदर एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट भी दिया था, ताकि एक हर एड्रेस जो है वो एक मेमोरी की यूनिक एड्रेस के ऊपर हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 9th और 3 के अंदर किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर होगा 14, किसी एक स्टूडेंट का नंबर होगा 15। तो अब यू आर अ यूनिक, यू हैव अ यूनिक आईडी। सिमिलरली स्टूडेंट आईडी भी आपकी डिफरेंट है, एमआर जिसे कहते हैं, ये क्या कहते हैं, स्टूडेंट आईडी जो आपकी फी वाउचर के ऊपर होती है। तो सेम एज इट इज, एवरी स्पेस इन द मेमोरी हैज अ यूनिक आईडी, और वो उसे कहते हैं हम एड्रेसेस। ओके, ना ये हमें एक्चुअली दिखाए नहीं जाते क्योंकि दे आर बेसिकली मैनिपुलेटेड एंड कंटेन अ पार्ट ऑफ, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, इम्पोज हुए होते हैं, और इट्स अ लॉजिकल एड्रेसेस नॉट फिजिकल एड्रेसेस। राइट, सो नाउ अब इस मेमोरी को देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो अगर क्लास अगर लाइट चली जाती है, सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन द वीडियो अगेन in the next week. Now MAR means registers. Registers basically the smallest memory unit. Okay, smallest memory unit है, सबसे इसके अंदर बिट्स के अंदर डेटा सेफ होता है, और स्मॉलेस्ट यूनिट इसको कहते हैं। Now
This red dotted arrow is basically called the control signal, and plain arrow signal is called the data signal. Now from the input device, हम डेटा इनपुट कर रहे हैं फ्रॉम, फॉर एग्जांपल हम डेटा इनपुट कहाँ से करते हैं, कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, लाइट पेन से, टच स्क्रीन से, इस तरह से। तो हमने इनपुट किया, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर जाएगा। मेमोरी के अंदर दो चीजें ऑलरेडी हैं, MAR और MDR। MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि ये रजिस्टर मेमोरी का एड्रेस रखेगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप है, मैं आपको कहूँगा सीट नंबर 4 पे जाके बैठ जाइए, तो आप सीट नंबर 4 पे जाके बैठेंगे तो सीट नंबर 4 जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। और आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी जाएगी, MDR में, क्योंकि आप डेटा है, आपका एड्रेस सीट नंबर 4 है। तो 4 जो है बेसिकली दिस कंटेन्स बाय द MAR। MDR basically contains by MDR contains the actual data। जो एक्चुअल डेटा है वो MDR कंटेन करेगा, और इस तरह से एक पूरा मेमोरी यूनिट में एक साथ काम होगा। फिर वो जाएगा आउटपुट डिवाइसेस में या वो CPU के पास। इस CPU से वो 2 वे डायरेक्शन है, डेटा गया MDR। अच्छा, MAR यहीं पर रहा। MDR जो है वो जैसे ही CPU के पास गया, CPU ने उसको कैलकुलेट किया, प्रोसेस किया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसको वापस मेमोरी यूनिट के पास भेज दिया, और वो मेमोरी यूनिट से उसने उसको वहां पे सेव किया। सेव करने के साथ ही उसको क्या किया, आगे आउटपुट डिवाइस को भेज दिया। ये सारा काम ऊपर से ही मेमोरी यूनिट और प्रोसेसर के दरमियान हो रहा है। मगर कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है कि जैसे ही प्रोग्राम काउंटर है, अब ये CIR की बात करते हैं। CIR बेसिकली हमारा एक रजिस्टर है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, ठीक है। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होती है कि इस कंट्रोल यूनिट के अंदर जो जो करंट इंस्ट्रक्शंस है, जैसे हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन आ रही है, आपने फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो आपने 2 तक काम कर लिया, फिर 3 तक कर लिया, आप अभी करंटली 3 पर हैं, ठीक है। मगर पाइपलाइन के अंदर जो भी डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के लिए रेडी होगी वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगी, और जो करंटली प्रोसेस हो रही होगी वो कहाँ जा रही होगी, CIR के अंदर। तो ये डिफरेंट एक आर्किटेक्चर्स हैं, ये इसको हम और डिटेल से भी पढ़ेंगे, और मैं आपको करके इसकी वीडियो ट्यूटोरियल भी दूंगा। सो okay, now there are more complex functions. Now coming back onto the topic, your homework is activity 4.2, 3, 4 and 4.5. Draw a summary table that shows how buses, registers and registers are connected together. This can be done doing a desktop exercise. You have to do this thing in your copies as well, okay. And similarly you have to draw a summary table, and in that summary table you have to do this exercise. Use a sheet of A0 flipboard card paper. It's up to you. You can do it in your paper, in the copies, or you can do it physically, so it's up to you. Okay, so we'll start the lecture from next week from 4.4.1, the memory unit। और फिर from यहाँ से memory unit में हम different registers को हम इस तरह से वो read करता है, load करता है, write करता है, we'll do that. Okay, and or if you have because हमारी vacation start हो जाएंगी, so I will ask you to just take one more class in this week so that we can complete this memory unit chapter. Okay, so I'm just stopping my recording over here. So if you have any questions, you can ask me.